This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हो? Everything going well? So, you remember last class पे we started with alkanes, methods of preparation of alkane. काफी सारे रास्ते किए from the reduction of alkene or alkyne. Remember, खास बात Lindlar catalyst C आता है, तो C से we are going to get cis alkene. Sodium या potassium liquid ammonia is another reducing agent. You call it selective reducing agent, जो एक specific product देते हैं. We are going to get trans. आपने बस एक चीज याद रखनी थी. We discussed alkyl halide से भी alkane बनाए जा सकते हैं by Woods reaction, by reduction, by Grignard reagent में पहले convert करके फिर उसके ऊपर moisture डाल देते हैं. From carboxylic acid, soda lime decarboxylation, the Kolbe electrolysis were discussed. And even reduction of carboxylic acid is going to give you alkanes. So we discussed a few of these methods. One rarely used method is also going to be there. It is hydrolysis. Hydro मतलब पानी, lysis means breakdown. Aluminium carbide टूट जाता है पानी के साथ और बना देता है मीथेन. The beryllium carbide dissociate कर जाता है पानी के साथ और beryllium hydroxide and methane is going to be formed. Don't worry, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन आपको बैलेंस्ड रटने की जरूरत नहीं है. कर सकते हो कर लीजिए, छोड़ सकते हो छोड़ दीजिए. हमें कभी बैलेंसिंग के पीछे कोई लड़ाई नहीं होगी. So that is, now we have to move further with the next topic, that is going to be chemical properties. तो शुरू करते हैं. It will be important and easy also. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेपिटेशन पे चलती है. अगर आपने रिपीट नहीं किया तो you are in trouble. Let's start. Alkanes are saturated and carbon-carbon and carbon-hydrogen bond are non-polar. Non-polar का मतलब 9 के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, 9 के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है. तो ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल ना ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे. Therefore, they are almost inert, less reactive towards acid, bases, oxidizing and reducing agent. However, they undergo some replacement or substitution reaction in which the hydrogen atom of alkane is substituted by other atom or group of atom. What he is talking is alkanes में से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसकी जगह पे कोई ग्रुप आ जाएगा. That group can be halogen. Halogen X बोलते हैं. Nitrosulfonic acid extra. So we call it the substitution reaction. And so that is their nature है. हम घोड़ों की रेस में हम किसी भालू को नहीं भगा सकते हैं. भालुओं की रेस में भी हम डॉग्स को नहीं भगा सकते हैं. तो एल्केन्स हैं तो हैं, ये उनका नेचर है. एल्केन्स शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. लॉक किया जाए, दे शो F फ्री रेडिकल S substitution. FRS abbreviation में बोलेंगे. That means this hydrogen will leave as free radical and the incoming group will come as free radical and that is FRS. Right? आपको पहले भी करा दिया गया. Substitution reactions क्या होते हैं? Substitution, जो English word. Alkanes undergo substitution reaction in which one or more hydrogen atoms are replaced by different atoms or groups. Some of these are going to be discussed below. आप एक important जगह में निकलने वाले हैं. अभी आप +1 में ये चीज करेंगे और फिर आप इसको +2 में भी करने वाले हैं. Sorry, the free radical substitution reaction. The first is going to be the halogenation. Halogenation में you put X2. X2 can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. One H moves out, उसकी जगह पे X as a free radical आ जाता है. The meaning of H nu is it indicates light. Generally,
यूवी लाइट, बिकॉज यूवी लाइट में एनर्जी होती है। इट डजंट मीन कि आप इसको सूरज में जाके ये रिएक्शन करेंगे। हम रिएक्शन मिक्सचर के पास एक यूवी लैंप लगा देते हैं। ऐसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। एच न्यू मतलब लाइट को इंडिकेट करेगा। और यू कैन डू इन द डार्क एट एलिवेटेड टेम्परेचर। डार्क का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर कोई टेंट लगा के अंधेरा कर रहा है। डार्क का मतलब सिंपली जो हम रूम में अपने काम करते हैं वहां पे हमें से हाई टेम्परेचर तकरीबन 700 केल्विन के आसपास, 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करना पड़ता है। सो बच्चों, पॉइंट्स, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर आप कल को बोलेंगे कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, आई डू नॉट हैव एनी आंसर, बिकॉज दे शो लाइक दिस। इट इज समथिंग लाइक हम कहेंगे कि सूरज उस तरफ से क्यों उगता है। सो दिस इज साइंस। दे शो फ्री रेडिकल, हमने डिस्कवर किया, हमें उसके नेचर को पढ़ना है। आप कहेंगे कि आपके पिताजी को, लेट इट बी, ऐसी बात कर रहे हैं, लेट इट बी उनको पनीर नहीं पसंद है, या मे बी उनको फिश बहुत खानी अच्छी लगती है। सो दैट इज देयर रीजन, दे हैव नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक। सो एफआरएस इज एज सच, इट हैज नो लॉजिक, इट इज एफआरएस, प्लीज लॉक किया जाए। So it is a photochemical reaction, takes place in the presence of light or in the presence of dark at elevated temperature. You're not supposed to memorize 523 to 773. रह गया तो अच्छी बात है। You write around 500 degree Celsius, convert करके देख लो, that is कितना केल्विन में होगा। ROR मतलब rate of reaction। फ्लोरीन के साथ रेट सबसे ज्यादा होगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। आप कह सकते हैं ऑमलेट जल्दी बनता है, मे भी हमारी किचन में राजमा और चावल देर से बनते हैं। सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, आयोडीन इज वेरी लेस रिएक्टिव, एंड जनरली वी गेट मिक्सचर। The mixtures are going to be obtained. My dear friends, every single word is important here. Halogenation में हमारे पास क्लोरीनेशन हो सकता है, फ्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडीनेशन हो सकता है। हम आपको एक एक करके बाकी चीजें पढ़ा रहे हैं। पहले रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म आएगा। मीथेन ले लो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरोमीथेन। The reaction will not stop here. The chloromethane can further react with chlorine in the presence of light or heat to form DCM, dichloromethane. The dichloromethane can further react with chlorine to form chloroform or trichloromethane, which further can give you the tetrachloromethane. Please, it's a first reaction officially. अगर आप अपनी किचन में इमेजिन करिए, आप अपनी किचन में एक ही बर्तन के अंदर खीर, राजमा, चावल, I'm sorry, I'm taking example of kitchen because that is the best laboratory you people have, right, closest to you. So अगर आप एक ही बर्तन में राजमा, चावल, खीर, में भी चपाती भी सब कुछ बना रहे हैं, so that will be foolishness. How will you separate it? हालांकि एक चावल या राजमा का दाना आप देख सकते हैं, बट एक मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते हैं। तो इट्स अ फंडामेंटल, wherever, whenever, in any reaction, a mixture of product is going to be obtained. That is always going to be avoided. रिएक्शन करना बहुत आसान है, रिएक्शन को सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, याद रखा जाए। तो देखो, रिएक्शन लिखने के, समझने के नए नए ढंग देखो। इसी रिएक्शन को नए प्रकार से लिखते हैं। दिस इज मीथेन। अगर एरो के ऊपर हम कोई चीज डालते हैं, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, अगर नहीं भी लिखते हो तो दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब दिस हैज बीन एडेड। प्लस लिखो या ना लिखो, माइनस लिखना जरूरी होता है। तो हमें मिल जाता था CH3Cl minus HCl. The same reaction first can be written in this way. I'm calling it as the first reaction. ठीक है जी? Can be written in this way. Now, there's an option. If Cl2 is in
excess, then the chlorine will react further, HCl will come out and you get dichloromethane. और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो वो फर्दर रिएक्ट करती चली जाएगी, फर्दर रिएक्ट करती चली जाएगी और आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगी, हर स्टेज में माइनस एसिड। आगे चल के आपको पता लग जाता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, बट अभी के लिए आपने जो मैं लिख रहा हूँ लिखना है। इफ क्लोरीन इज एक्सेस देन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज मेजर। मेजर मतलब आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे तो आपके 90 मॉलिक्यूल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलने वाले हैं। बट बच्चों अगर अगर क्लोरीन इज लिमिटेड रिएजेंट और मीथेन इज एक्सेस then CH3Cl chloromethane is going to be the major. Don't forget it. This is one thing you have to keep in your mind. Also, but not less important, is carbon tetrachloride is also known as common language में pyrene. Pyrene, you will note it down after the class. It was used as fire extinguisher as well as it is anti-helminthicidal. स्टमक इंटेस्टाइन के कुछ पर्टिकुलर प्रकार के कीड़े भगाने के काम में आती है। दिस इज क्लोरोफॉर्म। किसी समय ये इंसान को बेहोश करने के काम में आती थी। Now we have thousands of better anesthetic agent as compared to the chloroform. Understood? That is the chloroform, and all of them are very important solvents in the laboratory. I have discussed chlorination. Now chlorination अभी आगे चल रही है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, so let's move ahead. एक मिनट बेटे. Yes, if you have ethane, you put chlorine in the presence of sunlight. आपकी मर्जी है आप ऐसे लिखें या नहीं लिखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की चिंता होती है, ना बैलेंसिंग की ना माइनर प्रोडक्ट्स की, reactant or substrate. You can get lots of product. There is no restriction that how the reaction will happen. I hope you are able to understand what I'm doing. I'm randomly, right? Mathematically, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ. All or one hydrogen can be replaced. This is known as मेरी आपकी लैंग्वेज में खिचड़ी प्रोडक्ट. And remember, खिचड़ी is always avoided because दोबारा बोल रहा हूँ, रिएक्शन को करना आसान है, मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट को सेपरेट करना बच्चों is going to be difficult होने वाला है. समझ आएंगे? So remember chlorination. Now bromination occurs similarly but less rapidly. Chlorination, bromination, and iodination. Iodination is carried out by heating alkane with iodine in presence of some oxidizing agent like HiO3 or HNO3 or HgO, which oxidize Hi formed during the reaction. If Hi is not oxidized, destroyed, it being a strong reducing agent, it will make the reaction reversible. मतलब आप जहां से चलेंगे आप वहीं पे वापस आ जाएंगे. Watch this reaction. Methane, iodine, iodomethane, Hi. पहले तो ये रिएक्शन 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा. फिर जनाब ये जो Hi पैदा हुए हैं, Hi CH3I के साथ मिलके रिएक्शन को वापस मीथेन पे ला देगा.
आप अपने घर से गए थे स्कूल जाने के लिए, रास्ते में आपको कोई दोस्त मिल गया और आप वापस अपने घर आ गए, तो ये तो काम नहीं हुआ। हमें उस दोस्त को सीधा करना पड़ेगा, हमें उस दोस्त का जुगाड़ करना पड़ेगा कि वो आपको आगे ना मिले, रोज ना मिले। तो हम क्या करते हैं, HI को रिएक्शन के दौरान we add HiO3 और HNO3, we destroy the HI formed, HI is destroyed का मतलब वो बैकवर्ड नहीं लेके आ सकता है। Same is done with nitric acid, HNO3 destroy the HI formed। remember बच्चों, किसी भी रिएक्शन में now or ever we want reactants to react to form product, we do not want, ध्यान से सुनो, products formed should react with each other because वो हमें कहीं और ले जाए। We do not want reactant should react with product also, remember, we want reactant to react with reactant, that is all। These are certain fundamentals। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ why HiO3 or nitric acid or mercuric oxide is adding during iodination, so you are going to tell, you're going to write that HI is a powerful reducing agent. It will reduce CH3I back into methane, which is not a good option। फिर हम ये रिएक्शन करने क्यों चले थे? So that is the meaning of this fluorination, fourth वाला, the fluorination is avoided, right? Why avoided? फ्लोरीन के बारे में याद रखना, फ्लोरीन सिर्फ अपने साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाती है, F2 बॉन्ड इज वेरी अनस्टेबल, बट फ्लोरीन किसी भी और चीज के साथ बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाती है। इतने स्टेबल बॉन्ड बनाती है कि इट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली बिकॉज लॉट्स ऑफ हीट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, एंड हम लेबोरेटरी में एक्सप्लोजन नहीं चाहते हैं। आप किचन में, मैं वापस किचन में आ गया हूँ, आप किचन में कुकर में कुछ रखते हैं, यू डू नॉट वांट कि आप वहां पे काम कर रहे हो और वो कुकर फट जाए। दैट इज therefore fluorination of alkanes is not carried out directly, it is carried out in controlled condition। वैसे तो आप कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एल्केन लीजिए, फ्लोरीन डालिए और उसमें से इनर्ट गैस डाल दीजिए, नाइट्रोजन और आर्गन, उससे क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा हद तक कंट्रोल हो जाएगा। विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन द मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड एल्केन एक्सप्लोड मतलब इंसान को खतरा है। सो वी टेक इनडायरेक्ट रूट, दैट इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। In Schwarz reaction, we take alkyl halide, we make it react with AgF। इन दोनों के अंदर the halide और halogen exchange हो जाता है, fluoro comes here and the AgX is precipitated, we get fluoroalkane। Also in place of AgF you can use arsenic fluoride, antimony, mercuric or cobalt fluoride, and the reaction is known by an important name that is going to be known as the Schwarz reaction, to be taken care। आप एक नेम रिएक्शन नोट्स में तो लिखोगे ही लिखोगे, अपनी कॉपी में किसी ऐसी जगह पे नेम रिएक्शन लिखने शुरू कर दो, जैसे वुड्स आ गया, फ्रैंकलैंड आ गया, स्वार्ट्स आ गया। बाद में तकरीबन 6 महीने के बाद जब आप +2 में तैयारी कर रहे होते हो तो मैं कहूंगा कि इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना, वंस द सिलेबस +2 का भी कवर हो जाएगा। नाउ द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट of hydrogen of alkane is found to be 3 degree, 2 degree, 1 degree। अभी बताता हूँ 3 degree free radical is going to be more reactive than 2 degree and then it is going to be the 1 degree। ये भी बताता हूँ बेटा, मैकेनिज्म में आपके पास आने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री कार्बन है, अगर 2 डिग्री कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगे तो अभी बताता हूँ फ्री रेडिकल बनेगा, दैट इज मोर स्टेबल, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म 55%। और अगर आपके पास 1 डिग्री कार्बन पे क्लोरीन लगे तो वहां पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, द यील्ड इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। बट द बेटर इज गोइंग टू बी दिस वन, द
benzylic or allylic is more reactive, most reactive than 3 degree, 2 degree, 1 degree. Vinylic or phenolic is going to be least reactive. आपकी पुराने पाप कह लो, पुराने कर्म आगे आने शुरू हो जाएंगे. अगर आप बेंजालिक और एलालिक नहीं किए हैं, then you are trouble. I advise you should take opportunity of this system, the online, जिसमें आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, आपके पास नोट्स होते हैं. अगर किसी को बेंजालिक और एलालिक नहीं पता, he or she should go back and first study benzylic and allylic. Then you should move ahead, because अगर आप बाईपास करेंगे तो दिक्कत होगी. The reaction start. Mechanism is how does the reaction happen. जहां पे भी बेटे फ्री रेडिकल आ जाएगा ना, वहां पे 3 स्टेप होंगे. इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. चेन एब्रिवेशन CI, CP, CT लिखा जाएगा. CI, CP and CT. You're passing through very important phase. Ditto as such. +2 में भी ये चले जाएगा. Ditto as such +2 में भी चल जाएगा. So let's start the CI. In chain initiation, the chlorine react with sunlight and it dissociate to form chlorine free radical. Chlorine free radical. The chlorine bond dissociate homolytically, producing chlorine free radical. Now the chain propagation comes. This chlorine free radical abstract, remove, English word, chemical word, one hydrogen atom, forming methyl free radical. चेन प्रोपगेशन में मिथाइल फ्री रेडिकल बना. मिथाइल फ्री रेडिकल के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. इट abstract one chlorine to form chloromethane and regenerate the Cl positive, Cl free radical. The Cl free radical दोबारा फर्स्ट रिएक्शन रिपीट करता है, फिर सेकंड आता है, 1 2 1 2 and so on. That is known as chain propagation. P for propagation, P से प्रोडक्ट मिलता है. Now the chain termination. क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर रिएक्ट कर जाए क्लोरीन फ्री रेडिकल से, so you will be getting Cl2. अगर methyl free radical happens to combine with methyl free radical, you get ethane as the byproduct. That is the idea कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी बैलेंसिंग नहीं करते हैं, because we always get unexpected products also during the reaction. You understand? This is going to be बेटे mechanism. आप लेफ्ट साइड पे देखिए, वही चीज जो आपको दिखाई थी, लेफ्ट साइड पे देखो वही चीज राइट पे भी देखते हैं. इनिशिएशन, प्रोपगेशन, कोई फर्क नहीं, वहां पे मैंने उसमें एक स्टेप चेंज किया था, डजंट मेक एनी डिफरेंस. एंड द चेन टर्मिनेशन. ये रेड में इसलिए डाला है कि आई एम गोइंग टू आस्क यू, how can you account for formation of little bit of ethane during chlorination of methane. Now the right hand side वाला job आपके as such syllabus में तो नहीं है, but you should know that. अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन से टकराया था तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना. याद रखने के लिए मेरे और आपकी लैंग्वेज के बीच में, क्लोरीन फ्री रेडिकल का काम एक हाइड्रोजन एटम को उखाड़ना निकालना है. तो उसने इसमें से H निकाल लिया, आपको मिल गया CH2Cl फ्री रेडिकल. This CH2Cl free radical further react with chlorine to form dichloromethane plus chlorine free radical. अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल डाइक्लोरोमीथेन के ऊपर रिएक्शन मार जाए तो वो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के HCl पास से होगा. You will get CHCl2 free radical, which will further react with Cl2 to form trichloromethane. The trichloromethane further react with chlorine radical to form CCl3.
free radical, which react with Cl2 to form carbon tetrachloride. So we get a mixture, lottery of product is going to be obtained, my dear friends. So your job is to go through with all of these. ये एक बार रीड कर लेना, वही चीज वर्ड्स में डाली गई है बेटे, राइट? वही चीज जो आपको बताया, जिस मर्जी को फॉलो कर लेना. The thing is going to be the same. There is no difference at all. I have discussed the formation of other byproducts can be explained. ये जो भी राइट हैंड साइड पे आपको करवाया था बच्चों, that is going to happen. The Finkelstein reaction and Schwarz reaction are two important halide exchange reaction. Schwarz reaction तो आपको पता ही है, और Finkelstein पढ़ते हैं. सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 में कम होती है, +2 में ज्यादा आती है. +2 में सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी गोइंग अहेड. Finkelstein रिएक्शन दोबारा आएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दोबारा आएगी, सब कुछ दोबारा आएगा, बट डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको ये आता है. सो इट इज करेक्टेड बेटे. द Schwarz रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं. Schwarz, what happens in Finkelstein reaction? Sorry, Schwarz तो पहले देख लिया था. Finkelstein reaction is another halide exchange reaction. How many halide exchange reaction? 2. Schwarz and the Finkelstein. It is used for preparation of iodoalkane, Rx plus NaI. Iodine replace मार गया, Ri plus NaX. NaX आयनिक है, पोलर है, एसीटोन के अंदर प्रेसिपिटेट कर जाता है. बेटा अब ये SN2 आपको +2 में आएगा, सो आप रीड कर सकते हैं, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट आप SN2 को अभी 11th के लेवल पे कर पाएंगे. जो लोग +2 में SN2 देख चुके हैं, they can see the SN2 reaction. They can easily see the SN2 reaction. Understood? SN2 happens. Iodoalkanes. Now let's move ahead. हम कर क्या रहे हैं? हम हाइड्रोजन रिप्लेस करके अभी हमने हैलोजन लगाया है. Now we are moving toward the next reaction that is known as nitration. Alkanes को पैरा-लेस अफीन रिएक्टिव बोला जाता है. इनके ज्यादा रिएक्शन नहीं है, अल्कीन से रिएक्शन बढ़ जाएंगे. नाइट्रेशन, इसमें एक H बाहर जाएगा, उसकी जगह पे NO2 आएगा. At room temperature, alkanes do not react with nitric acid. However, nitration of higher alkane, 6 कार्बन या उससे ज्यादा, is carried out by boiling alkane with nitric acid. Alkane obstinate है, stubborn है, ढीठ है towards reaction. तो ये नाइट्रिक एसिड जो कि एक बड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो हमें बॉयल करवाना पड़ता है. We get nitrohexane. अगर आप लोअर एल्केन 6 कार्बन से नीचे को नाइट्रेट करने की कोशिश करें, तो आपको वेपर फेज का मतलब नाइट्रिक एसिड को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा. हमें नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन मिल जाता है, बट ये बहुत अच्छे रिएक्शन नहीं है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा किंग है जिसको तभी बुलाया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, बिकॉज नाइट्रिक एसिड नुकसान ज्यादा करता है फायदे के मुकाबले. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इथेन है, आपको 2 कार्बन वाला नाइट्रो, 1 कार्बन वाला नाइट्रो भी मिल जाएगा. खिचड़ी है, 3 कार्बन वाली प्रोपेन थी, 3 कार्बन वाला नाइट्रो, 3 कार्बन पे दूसरी पोजीशन पे नाइट्रो, आपके पास 2 कार्बन पे नाइट्रो, बेशक मैंने नहीं लिखा, CH3NO2 1 कार्बन वाला भी मिल जाएगा. एंड अदर प्रोडक्ट्स लॉटरी मिलती है, तो क्या आप खिचड़ी रिएक्शन को करना चाहेंगे? नो, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, गुड ऑप्शन दैट वी शुड डू दैट. यू अंडरस्टैंड? अगेन बेटे, the reactivity is always going to be 3 degree, 2 degree, 1 degree. The mechanism, the nitric acid dissociate into free radical NO2. The OH free radical abstract hydrogen to form R free radical, and R free radical react with nitro to form RNO2.
सुनो, मैकेनिज्म आने चाहिए, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, बट वो मैकेनिज्म करो जो आपके सिलेबस में है। मैं ज्यादा करूंगा समझाने के लिए, दैट्स द रीजन हम आपको एनसीईआरटी पढ़ने को बोलते हैं। सिर्फ वो वाले मैकेनिज्म करो जो आपके एनसीईआरटी में है। रिएक्शन आना जरूरी है, मैकेनिज्म आना कम जरूरी है, बट उनका मैकेनिज्म आना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपके सिलेबस में है। तो हम आपको मैकेनिज्म क्यों करवाते हैं? बिकॉज मैकेनिज्म रिएक्शन को समझने में मदद करते हैं, दैट इज आइडिया। सल्फोनेशन, SO3H group आएगा। The alkanes react with fuming sulfuric acid at high temperature. No need to remember. आपने देख लिया हाई टेम्परेचर 700 केल्विन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 723 लिख दो। The higher alkanes containing 6 or more carbon atom undergo sulfonation. सल्फोनेशन में भी खिचड़ी मिलेगी। सल्फ्यूरिक एसिड SO3H देता है, तो एक हाइड्रोजन हटा के SO3H हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे the 2-methyl propane 2-sulfonic acid. You will be getting mixture. Nitric or sulfuric acid are strong oxidizing agent. They break down the carbon-carbon bond. नुकसान पहुंचाते हैं। The alkanes undergo oxidation reaction under special condition to form variety of product. एक आ गया हैलोजनेशन, एक आ गया नाइट्रेशन, एक आ गया सल्फोनेशन, और अब आ रहा है ऑक्सीडेशन। Alkanes, on heating in presence of excess of air, are completely oxidized to carbon and water. Methane plus oxygen forms carbon dioxide and water. कितनी एनर्जी पैदा करता है? It is a fuel. LNG, CNG हमारी गाड़ियों में भी आ रही है, घर के अंदर पाइपलाइन से भी आ रही है। Ethane is a fuel. Propane, butane is the fuel. जो ब्यूटेन है वो LPG सिलेंडर है। The oxidation is going to produce carbon dioxide and water. अगर आपको ठीक लगे मेरी इंस्ट्रक्शन, तो इसको जनरल इक्वेशन को कॉपी करके फर्स्ट पेज पे रख लेना। यू नेवर नो लॉटरी कब लगती है। दिस इज कंप्लीट कंबस्टन बच्चों। इनकम्प्लीट कंबस्टन, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ इनकम्प्लीट कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन भी निकल सकता है। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग शू पॉलिश। ब्लैक पिगमेंट्स, आपके जो प्रिंटर्स की जो इंक आती है, दैट इज ऐसे पैदा की जाती है, कार्बन ब्लैक। मीथेन को जलाया बट बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं दी, तो उससे हमें कार्बन ब्लैक या मोनोऑक्साइड मिल सकता है। आपके पेंट्स वगैरह में भी यही चीजें यूज होती हैं बच्चों। द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, सुनो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन वाले। मीथेन react with oxygen in the presence of copper to form methanol. सुनो, no need to remember 9:1, पढ़ना जरूर। No need to remember 100 atmosphere pressure. No need to remember 523. Use high temperature, high pressure. Copper मत बोलना, catalyst है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर इधर भी आएगा। जहां पे भी आप गैसेस देखेंगे ना, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा आएगा। वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाता हुआ दिया गया। अब है तो है भैया, आप भी क्या करोगे। एल्केन्स, सिल्वर ऑक्साइड या मैंगनीज एसीटेट, इवन मैंगनीज टी रेट भी यूज होता है, से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नोटिस द इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच, देखना जहां पे मेरा कर्सर होगा। R और CH3, R और COH, दो कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन दो कार्बन, कार्बन एटम कम नहीं होते। Alkanes having 3 degree hydrogen atom. When I spoke 3 degree, only 3 degree. Singh, do not call it 2 degree or 1 degree. नहीं है यार, 3 degree है। ये कार्बन देखो, this is 3 degree hydrogen, this is 3 degree कार्बन। अगर आप alkaline के MnO4 या even पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, the 3 degree hydrogen is going to be oxidized into corresponding alcohol. Remember the 3 degree hydrogen। मतलब अगर आप ये रिएक्शन
करने की कोशिश करेंगे तो नथिंग विल हैपन, बिकॉज ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अगर आप प्रोपेन के ऊपर ये काम करने की कोशिश करेंगे तो नथिंग विल हैपन, क्योंकि इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन ही नहीं है। सो आपको जो रिएक्शन करवाए जा रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठे बैठे इनको नहीं बना सकते हैं, होता है। रिएक्शन विद स्टीम, methane when react with steam in the presence of right heated nickel, I'm sorry कट गया गलती से, nickel and Al2O3 converted into carbon monoxide and hydrogen. The mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as water gas. This is also a fuel. Carbon monoxide एक बहुत अच्छा फ्यूल है, हम ये काम करते हैं। आइसोमराइजेशन, आप इसको रीअरेंजमेंट में भी कह सकते हैं। स्ट्रेट चेन अल्केन isomerize to branch chain alkane when heated with anhydrous AlCl3 and HCl gas under high pressure. बच्चों स्ट्रेट चेन मिल रही है आपको, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं बेटे, 4 कार्बन, anhydrous AlCl3 HCl के साथ that convert into isobutane 2-methyl propane, ब्रांचिंग हो गई। अब ब्रांचिंग एट रैंडम होगी, राइट? अगर 6 कार्बन वाले की चेन है, 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, neohexane, you can get many thing mixture. हमारे घरों में जो, सॉरी गाड़ियों में जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, गैस बोलते हैं उसको, गैसोलीन बोलते हैं उसको, सो उसमें 6 से लेके 10 कार्बन होते हैं। पेट्रोल की क्वालिटी हम ऑक्टेन नंबर से देखते हैं, जितना ऑक्टेन नंबर बेटर होगा पेट्रोल उतना बेहतर जलेगा। तो पेट्रोल अगर स्ट्रेट चेन हो, एन-हेक्सेन हो, that is going to be not a good fuel as compared to अगर वो ब्रांच हो जाए 6 का। तो हम पेट्रोल को लेते हैं, उसमें हम कैटलिस्ट में से पास करवा देते हैं, we get branch chain petrol, the combustion is going to be better हो जाती है, उससे वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी देता है बेटे। एरोमेटाइजेशन, the alkanes containing 6 or more carbon atoms when heated at high temperature and pressure in the presence of catalyst like Cr2O3, molybdenum oxide, vanadium oxide, straight chain convert into the aromatic compound. 6 कार्बन वाली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाला वही रिएक्शन है, पहले साइक्लोहेक्सेन स्क्वायर ब्रैकेट में डालने का मतलब है रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुका। इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन, के हाइड्रोजन बाहर आ गई है, और ऐसा करने से भी हमारे पास पेट्रोल की जो ऑक्टेन नंबर है बढ़ जाता है। aromatic compounds burn better as compared to straight chain compound or branch chain compound. Similarly, अगर आपके पास 7 कार्बन है तो आपका 7 कार्बन वाली टोल्यूइन मिल जाएगा। अगर आपके पास 8 कार्बन है तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा ज़ाइलीन मिल जाता है। That is going to happen. The next is cracking or pyro heat lysis. When higher alkanes are heated to high temperature in the presence or absence of catalyst, the chain, the carbon atom breaks down. और बच्चों ये ना रैंडम होगा, इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रोपेन 3 कार्बन है ना, एक एल्कीन एक एल्केन, या एल्कीन और हाइड्रोजन बना लो। दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉरी फ्रेगमेंटेशन, क्रैकिंग और pyro heat. For example, petrol, hexane, it can convert into hexene, butane plus ethane, propene, methane and mixture में। आप लोगों को करवाया गया था थर्मोडायनेमिक्स में, जितना कार्बन एटम कम होते हैं फ्यूल उतना बढ़िया होता है।
Pyrolysis of alkane is considered to be free radical. Alkanes देते ही free radical हैं. The catalytic cracking of petrol or kerosene oil is employed for production of oil gas or petrol. Dodecane kerosene on heating gives you heptane and pentene and other product. आप लोगों ने तो शायद केरोसिन ऑयल देखा ही नहीं होगा, शहरों वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा. केरोसिन ऑयल धुआं करता है, बहुत अच्छा नहीं जलता है, तो हम केरोसिन ऑयल से पेट्रोल बना लेते हैं इस रास्ते से. इवन मीथेन टूट जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन में. दिस इज अ वंडरफुल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आने वाले समय में आपका एक बहुत अच्छा फ्यूल होने वाला है. सिमिलरली बच्चों, द मिथाइलिन कैन बी इंसर्टेड. देखो ना, 4 कार्बन है, मिथाइलिन कार्बन और कार्बन के बीच में आ गई. अगर आपने डाईएजोमीथेन के साथ इसको हीट करवा दिया, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी आ सकती है. 4 कार्बन से यू कैन गेट पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं. डिफरेंस ऑब्जर्व करो, CH2 कार्बन और कार्बन के बीच में आ गई, और CH2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ गई. ये एक सेकंड बेटे, राइट, 1 मिनट, कुछ कारण है, रोक रहा हूं. यस, अब देखना, जब आपने इसको हीट किया तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. देखो, CH2 इधर आ गया और इधर भी CH2 आ गया. किसके साथ हीट किया? डाईएजोमीथेन के साथ हीट करने से आपको ये मिल गया. इवन आप कीटीन भी यूज कर सकते हैं, किट इन भी यूज कर सकते हैं. इसका नाम कीटेन है. और सुनो बच्चों, सारे रिएक्शन करना, जरूर करना, कोई मत छोड़ना, बट जब इवेल्युएशन होगी तो वो वाले रिएक्शन बताना जो आपकी एनसीईआरटी में आती है. क्यों कर रहे हैं हम ज्यादा? क्योंकि हमें आपके कंप्लीशन के ख्याल करना है, हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग का ख्याल करना है, हमें आपको इंटरनेशनल लेवल के ख्याल करना. कल को कुछ लोग आप में से दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में सोचेंगे, तो वो सैट के बारे में सोचेंगे, तो वहां पे हम आपको एक लेवल पे काम करते हैं. These are few homeworks, right? आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी की होगी कल. Which of the following has the highest boiling point? Complete the reaction. क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? That has been discussed with you people. What is this reaction known as? Soda lime decarboxylation. याद करो, तो एक कार्बन कम हो जाता है. Answers have been provided. तो आप फिर भी, अच्छा इसको मैंने कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं. तो ये आप देख लेंगे, मैंने डुप्लीकेट कर दिया बेटे, है ना, आप इसको देखेंगे. I have provided practice problems also. Must repeat it. तो पता नहीं कैसे रिपीट हो गए क्वेश्चन. तो I have put NCERT problems here. You should do. Objective papers, objective question has been provided. You must answer. Right? So that will be your homework. 18th क्वेश्चन में बेटे अभी एक्सेप्ट कर लेना, +2 में डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी करवाऊंगा. तो अभी यू विल बी गेटिंग, ये बस अभी रख लेना है क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो हम चीटिंग करेंगे, आपको बेस ना करवाते हुए हम यहाँ पे ले जाएंगे. सो आई डू नॉट वांट टू डू इट राइट नाउ. सो उसको समय पढ़ने पे किया जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, we have completed alkanes. We discussed method of preparation, the physical properties, boiling point, melting point, पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था,
and the chemical properties. Problems has been provided. You're supposed to solve these. Next lecture alkenes पे आएगा. MOP, chemical properties and physical properties. फिर हम चले जाएंगे alkynes पे, and उसके बाद हम आ जाएंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में. आपके +1 के सिलेबस में बच्चों ये सब चीजें यहां तक हैं. अल्कीन्स इसके मुकाबले लंबा होगा, सच में इसके मुकाबले लंबा होगा, सो उसको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा मेरे हिसाब से. उसको जैसे इसमें 2 सेशन लगे हैं ना, उसमें से 3 या 4 सेशन के आसपास लगेंगे. तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, प्रैक्टिस चलते रहे, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें, आप रिवीजन में ज्यादा टेस्टिंग कर पाए बेटे. सो वी विल स्टॉप हियर एंड विश यू गुड लक. आपका नाम भी दुनिया में चमके बेटे. तो यहाँ पे रुकने वाले हैं. सी यू अगेन विद alkenes in the next class. Jai Hind. Bye bye. Good luck.